So basically, let me start with introduction of the course of AI, myself, Dr. Ishan, and we will inshallah study. The way I proceed is I basically give an overview of the subject and then I try to discuss the whole subject in general, the basic principles and terminologies and the concept that we will be studying within this course. ताकि थोड़ा सा कोर्स एक्चुअली स्टार्ट होने से पहले हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि हकीकत सब्जेक्ट है क्या हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है कौन से तीन टर्मिनोलॉजीज हैं ताकि जब हम सब्जेक्ट चैप्टर 1 2 3 से स्टार्ट करना शुरू करें तो हमें पता होना चाहिए ये चीजें इस हिसाब से आपस में होती हैं तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू बन जाता है. So before I proceed, we all know that artificial intelligence, computer vision. So this course basically has two sections. In other words, artificial intelligence, AI, and computer vision. We will be covering. We will try to cover at least both. Let's see how it goes. Again, schedule it. This is my email address. So any information, any help, any correspondence you would like, please feel free to contact me via email. And कुछ ही समझ में नहीं आ रही किसी को टॉपिक के बारे में पूछना वगैरह so you are welcome to contact me by email. This is the referred book that I will be using. First one of the referred books throughout this course, Artificial Intelligence: A Modern Approach by Khalid Russell. Sorry, this is a very nice book. I think कुछ editions इसके शायद library में भी available हैं. Otherwise, मैं आपको इसका link जो है वो दे दूँगा ताकि if you want a soft copy of the book, you can download it from internet as well. मैं officially आपको ये soft copy book provide नहीं कर सकता क्योंकि वो copyrighted होती है, so it will not be appropriate कि मैं आपको पहले version देता हूँ. But like I said, I will let you know that you can search the soft copy on the book from the net and you can download it yourself as well. Anyway, then what my habit is, I have few links online, few resource places of my own that I try to manage, and I try to upload my own resources concerned to my subjects on these URLs so that students can easily get those resources. So rather than coming to me every week or every time, this slides चाहिए, notes चाहिए, ये चाहिए, फलाना चीज़ चाहिए, I post everything online and you can download it at your own convenience. So this is one of my websites that I maintain. Do keep a URL of it. All my lecture notes, slides, handouts, practical examples, whatever we will be covering. There's even results agar abhi I will upload it on this particular section, so you can very easily download it wherever you have. The course contents, जो actual में पूरा course contents है वो I think मैंने already इसमें upload कर दिया है. So if you go in online, the course contents upload हो जाएगा. Slides hopefully by today or by tomorrow मैं upload कर दूँगा पहले से ताकि आपको थोड़ा सा provide मिल जाए. This is my blog, which I also maintain with the same name, and I try to upload all the notes on the slides, all the information there as well. And then you are welcome to ask me, query me, question me anything on the blog as well. कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही पढ़ने बैठे हैं, तो you are welcome to query that question up on the blog as well. Okay, I try to encourage students to interact with me via blog as well, ताकि थोड़ा सा आपको blogs पढ़ने की आदत हो. हम लोग यहाँ पे blogs को बहुत कम follow करते हैं. ठीक है, पहले पता है blog है क्या? You all know what blog is, right? कौन से year में? बाहर जाओ, इधर लगाओ नहीं कहीं ना. वहाँ शक्ल देखो अपनी आपकी, फिर थोड़ा सा शर्म महसूस करो. Yes, brother. It's a website obviously, but it's what we call a personalized news website. It's a personalized experience. It's a personalized notebook, personalized diary for artists, for readers, for writers. Just for example, आपको लिखने का शौक है, आप अपना डेटा कहाँ पब्लिश करो? तो blogs free of cost. For example, अगर Google Gmail की ID है, you can go on to blogger.com, जिसमें मैंने use किया है Blogspot. Go on to Blogspot, log in with your Gmail ID. You can create your own blog. So basically, a blog is a website. आप अपनी website बना सकते हो free of cost. Then you can continuously update it with your own posts. अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में. For example, मैं जैसे notes और इसकी website maintain कर रहा हूँ. तो जितने भी notes आ रहे हैं मेरे पास, lectures हैं, slides हैं, handouts हैं, tutorials हैं, information आ रही है, I try to put it on the blog ताकि लोग जो मेरे students हैं वो अगर interact करें तो पढ़ सकें. So log into your Gmail ID, follow this blog, ठीक है, ताकि आप लोग ऑटोमेटिकली इसकी नोटिफिकेशन आ जाए या फॉलो करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या डेटा अपलोड हो रहा है. Then similarly there are hundreds and thousands of blogs like this. Every international, every student
न्यूज़पेपर राइटर, मैगजीन राइटर, आर्टिस्ट, मैंने अपने ब्लॉग बनाए हैं। मेरा मूड है, मुझे खाना अच्छा लगता है, तो मैंने खाने के ऊपर एक फूड के ऊपर एक ब्लॉग बना दिया। एंड मैं आप मुझे जिस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ उसके बारे में तासुरात, एहसासात, अपने जज्बात उस ब्लॉग पे एज ए पोस्ट के तौर पर, डायरी के तौर पर लिखता हूँ। तो फिर दोस्त यार लोग, जितने भी कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रीडर्स हैं वर्ल्ड ओवर, उसको किसी को पढ़ना है, they can easily read it, search it. It's like a newspaper website, but more personalized to it. It's a very good thing. जो ये यूज करता है अच्छी बात है, जो नहीं करता प्लीज सॉफ्टवेयर फाइनल में पहुंचे। आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि टू है अपने क्रिएटिव ब्लॉग्स, यू विल हैव टू वर्क ऑन वेबसाइट्स दैट आर बेस्ड ऑन ब्लॉग्स, एंड बहुत सारी इसमें चीजें आती हैं। खैर इसके ऊपर फिर तफसील किसी और दिन गुफ्तगू होगी। So this is my blog. Do follow it, do maintain it. Try to create your own blogs. Try to link into this thing so we can share. You can comment on the blog as well. The advantage है कि आप इसमें comments कर सकते हो, questions पूछ सकते हो। जैसे इस slide में ये चीज समझ नहीं है, slide में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, slide में ये चीज हमें समझ नहीं है, थोड़ा सा explain कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। So you can interact with me at that time as well. And then obviously I have a Facebook page as well. Mostly because we are all aware of Facebook. ठीक है, Facebook तो सब इस्तेमाल करते होंगे ना। So just like this page so that you can follow the updates on slides and notes and handouts as well. तो जो notes में अपलोड करता हूँ और मैं उसका लिंक Facebook पे फेंक देता हूँ ताकि पता चल जाए कि आपके पास Facebook है। Second thing, course overview. What exactly we are going to cover in this particular course? Now, Facebook है course overview in terms of artificial intelligence. Basically, AI के अंदर हम लोग डील करेंगे that how artificial intelligence system can be created. ठीक है, सबसे पहले what exactly is artificial intelligence? सर कोई भी मशीन है हमारे हम अगर उसमें बिहेव वैसे तो लैंड ह्यूमन बिहेव करें वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Any other idea? First thing, I like to direct. Okay, so do open up. Don't hesitate to ask question. कोई चीज समझ में नहीं आ रही, don't hesitate to ask. ठीक है, पहले आपको लगे कि यार पूरा सही सवाल नहीं है, स्टूपिड सा क्वेश्चन है, पर अगर समझ में नहीं आ रही कोई चीज है, कोई दिमाग में कोई बात है, अगर इसको ऐसा भी हो सकता है, don't hesitate to ask. ठीक है, I welcome and encourage questions. इस चीज की परवाह मत करना कि दूसरा हंस रहा है क्लास में, किसी को क्या लगेगा, वो करोगे तो खुद पे नुकसान होगा। तो जितने क्वेश्चंस हैं और मैं अगर कुछ पूछ रहा हूँ नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा सा आइडिया है, डोंट हेजिटेट टू आंसर एज वेल। ठीक है, एआई जैसे भाई ने कहा इज एग्जैक्टली करेक्ट, मेकिंग मशीन्स एबल टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर को, मशीन्स को, डिजिटल सिस्टम्स को हम इस तरीके से उसको प्रोग्राम करें, क्रिएट करें कि वो इंसानों के तर्ज अमल के तहत बिहेव करना शुरू करें, जिस तरह से इंसान बिहेव करता है। That is the basic essence of AI. We will be covering that. So course के अंदर objective इसके AI will involve foundations, intelligent systems, agents, searching, problem solving, logic, representation, reasoning, वगैरह वगैरह. These are various different topics that we will be covering. Basically, will be involving some symbolic programming and some robotics information, as well as I will be covering the game development aspect as well, that how can we incorporate AI in games. For example, nowadays artificial intelligence is usually being incorporated inside the games. For example, chess. Chess is one of the major excellent examples of game development, where of AI. Sorry, chess games में वो AI की हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके तहत हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं। बहुत एक जबरदस्त एग्जांपल्स करते हैं। मीन्स कि चेस में ये होता है कि आपके हर मूव के हिसाब से अगला मूव चला जाता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट ह्यूमन बीइंग इज थिंकिंग। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गेम है आजकल इतनी जबरदस्त बनी है कि इट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट्स द मूव्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बेस्ड ऑन योर मूव्स वो अपनी चाल चलता है। जो कंप्यूटर का प्लेयर है इस हद तक एडवांस लेवल पे जा रहा है। सो वो किस तरह से जा रहा है, उसकी लेवल है 5 6 7 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, वो किस तरह से उस गेम को हमने प्रोग्राम किया है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर ऑन इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, सो दिस कोर्स दैट वुड मीन दैट विल इन्वॉल्व सम बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, बिकॉज डेवलपमेंट की बात यहाँ पे आ रही है। इट विल इन्वॉल्व डेटा स्ट्रक्चर्स बिकॉज एल्गोरिथम, डेटाबेस, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स में है। मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत इसमें जरूर है और ऑब्वियसली बेसिक अलजेब्रा स्किल्स। तो ये वो चीजें हैं व्हिच आई एम श्योर वी ऑलरेडी आर क्वाइट अवेयर ऑफ। ठीक है, वो इससे ज्यादा मसला नहीं होगा। Basic grading scheme that I usually follow is that I have 10 marks for attendance. So please do make sure you attend your classes regularly. And we have like 2 classes only and on Mondays. So अगर Tuesday की दिन छुट्टी हो गई
दोनों क्लासें मिस हो गई। So that is why I also had to jump running, like at least मैं क्लास जरूर हूँ, अगर आज अगर थोड़ा सा मिस हो गया तो दोनों क्लासें गए, फिर वो तीसरा टाइम निकल गया, फिर फोर्थ भी गया, तो बहुत बड़ी कोर्स ले लिया। So in that regard also I recommend that please do attend the classes because I tend to give attendance marks as well. So 10 marks आपके attendance के हैं, 10 marks will be for assignment. Now the way I give assignments usually is I tend to give each individual a different assignment, or if I create a group, then each group has a different assignment. So that you don't go and do study copy paste or spread करा के फाइल करके जमा करा दो बस ना। थोड़ा सा मेरा टास्क लेवल डिफरेंट भी होता है, इंडिविजुअल भी होते हैं, किसी को अलग-अलग है और उसमें थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। Hopefully you will find this subject very interesting क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंटेलिजेंस के हिसाब से, आर्टिफिशियल के हिसाब से, रोबोट के हिसाब से बात करते हैं। It is quite interesting, गेम डेवलपमेंट के हिसाब से थोड़ी सी मैं बात करेंगे। So it will be interesting and hopefully the assignments would also be covering different aspects of AI ताकि आप लोग थोड़ा सा कर सको। उसके marks भी obviously 10 marks हैं। So if you do these two things properly, attend the classes regularly, do assignment 20 marks आपको अपनी यहाँ पर। बाकी 20 marks to 40 marks आपको मिड टर्म और एग्जाम को डालने तो आपके 60 marks इजीली आ जाएंगे। So I'm very easy with marks in terms of marks as long as you follow the basic principles. Okay? So यहाँ तक कोई चीज प्रीरेक्विजिट कोर्स के हिसाब से कोई क्वेश्चन पूछना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ब्रदर। सर आपने बताया ये गेमिंग के जो करते हैं हम चेस के तो ऐसे और भी गेम्स हो सकते हैं। अभी तमाशा मैंने कहा कि अभी चेस का एग्जांपल इसीलिए और एआई के अंदर बहुत दफा मैं चेस का एग्जांपल देता रहूंगा और हम उसके कुछ प्रैक्टिकल्स करते भी रहेंगे बिकॉज इस वक्त जो इंटेलिजेंस की लेवल चेस में अचीव की गई है वो बड़ी हाई क्लास की है। उसका और उसको एक आइडियल एग्जांपल लिया जाता है क्योंकि वो आपके इंसान की सोच के हिसाब से कि अगर आई थिंक चेस का सबको थोड़ा पता है, लेकिन अगर मैं प्यारा चल रहा हूँ या मैं घोड़ा चल रहा हूँ, रानी चल रहा हूँ, तो मैंने अगर घोड़ा पहले चला तो मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे पता, अगले को नहीं पता। तो कंप्यूटर हमारी सोच को देख रहा है, अच्छा इसमें प्यादा चला, इसका मतलब उसको ये चल रहा है, ये चल सकता है, या इसका वो माइंड में, तो वो जो इंटेलिजेंस है वो उस हिसाब से ट्रैक कर रहा होता है। तो दैट इज व्हाई वी टेंड टू गिव एग्जांपल ऑफ चेस बट फॉर एग्जांपल आपने काउंटर स्ट्राइक किसी ने खेली है या नीड फॉर स्पीड है या हिटमैन है या मैक्स पेन है, इस तरह के आजकल बेतहाशा गेम जा रहे हैं फ्री में, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है एनपीसीज का। यू नो एनपीसीज इज एनपीसी इज नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, मीन वो जो कंप्यूटर के कैरेक्टर है। तो अगर मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ, एक तो आपस में खेल रहा हूँ, लेकिन जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है, मैक्स पेन है, आईजीए है, उसमें हम कंप्यूटर के प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। तो हाउ टू मेक दो कंप्यूटर प्लेयर इंटेलिजेंट, इस वक्त वो भी जो बिहेवियर है वो जो कंप्यूटर के हैं एनिमीज, उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेड होता है, पता होता है कि मैंने इस तरह से करना है। आपने एक दफा लेवल खेला, आप आउट हो गए, पर आपको उनका बिहेवियर पता चल गया कि थोड़ी देर बाद बंदा इधर से आएगा, मुझे गोली मारनी, दूसरी बार वो बंदा इधर से घूमता होगा, मतलब आपको पता चल जाता है। एआई बेस्ड एनपीसीज मींस नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, वो आपके बिहेवियर को जज करते हुए खुद अपना डिसीजन लेते हैं। वो पहली दफा इधर से आ रहा, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई बंदा आ रहा है, वो चुपके पीछे चला गया, फिर वो कोने से वो घोड़े को गोली मार दिया, फिर वो घूम के दूसरी तरफ चला गया, मतलब हर दफे उसका बिहेवियर ऐसा हो जैसे कोई इंसान आपके साथ किया जाए। तो ये एआई के अंदर इस तरह एवरी गेम नाउअडेज इन्वॉल्व्स एआई, फ्रॉम गेम टू आप डिफरेंस के एप्लीकेशन में जो आगे चल के मैं डिस्कस करता हूं, इवन आजकल जो हम कंप्यूटर मोबाइल पर जो गेम्स खेल रहे हैं उसके अंदर हमारे पास एआई आ गई है कि बेस्ड ऑन आवर बिहेवियर कंप्यूटर अपने डिसीजंस ले। ठीक है, मैं एग्जांपल्स और देता हूं, ऑब्वियसली गेम्स का बहुत बड़ा फैक्टर है इसके साथ से। इसके साथ साथ आजकल इवन कीबोर्ड है जो एंड्रॉइड के अंदर या आईफोन के अंदर जो मोबाइल के अंदर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, वो कीबोर्ड्स एआई यूज कर रही है कि मैं अगर गुड लिख रहा हूं, गुड के बाद मेरी आदत के हिसाब से मैं नेक्स्ट जुमला क्या लिखता हूं। अगर मैं अस्सलाम लिखता हूं तो सिर्फ अस्सलाम लिखता हूं या पूरा अस्सलाम वालेकुम लिखता हूं या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिखता हूं, तो मैं सिर्फ अस्सलाम लिखूं, कंप्यूटर को खुद ही मुझे पूरा बरकातहू दे देगा एंड तक, क्योंकि उसको पता है कि मेरी आदत क्या है। ये एआई में आदत है कि कंप्यूटर हमारे बिहार पर खुद सोचे, अच्छा इसमें अस्सलाम लिखना मतलब मुझे पूरी चीज देनी है। मैंने गुड लिखा है तो गुड के बाद मैं मॉर्निंग कहता हूं या गुड वर्क कहता हूं या गुड जॉब कहता हूं या सिर्फ गुड लिखता हूं। कंप्यूटर को मेरे रिएक्शन के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से पता चलता है। तो एक कीबोर्ड फॉर एग्जांपल फ्लैश की, एक है स्वाइप कीबोर्ड, एक है दूसरा यार उसका नाम भूल गया, बड़ा फेमस एंड्रॉइड कीबोर्ड आता है जो डिफॉल्ट मोबाइल के साथ आता है, वो नहीं अलग से इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी आप एआई बेस्ड आ जाता है। तो आपके वर्ड्स प्रेडिक्ट करने लग जाता है कि पहले आपने जो वर्ड लिखा उसके बेस पे अगला वर्ड, उसका अगला वर्ड क्या होगा। दिस इज ऑल एआई बेस्ड एप्लीकेशन। इस तरह से बेतहाशा
we will be discussing that. तो पहली चीज हुई कि AI से exactly हमें मकसद क्या है, थोड़ा वो चीज समझ में आ जाए कि what exactly do we mean by AI, artificial intelligence हम कहते किसे। अच्छा, by the way मैंने ऐसे बताया कि कोर्स टाइटल के 2 सेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग स्टार्ट करें AI से, तो थोड़ा सा AI को फॉलो करते चलेंगे, क्योंकि AI का जो नेक्स्ट स्टेज है वो कंप्यूटर विजन है, या वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस और द नीड्स ऑफ AI इस कि आपको विजन भी आना चाहिए, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि AI की कंप्यूटर विजन भी है, इसीलिए दोनों चीजें साथ भी है, और इसीलिए पहले हमने AI को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना है, एंड यू विल ऑलरेडी सी कि उसी के अंदर कंप्यूटर विजन भी ऐसे ऐसे हमारे पास आ जाएगा, तो डोंट कंफ्यूज विद दिस थिंग, वी स्टार्टिंग विद AI but obviously later on we will be discussing computer vision and stuff. So फिलहाल let me start with AI. Why we need AI? Okay, we call ourselves Homo sapiens. Homo sapiens का मतलब ये कि हम लोग इंटेलिजेंट ह्यूमन हैं। इंटेलिजेंस से क्या मतलब? मैं कहूँ यार मैं एक बड़ा ज़हीन इंसान हूँ, इससे क्या मतलब? एक बार हम अपने काम खुद से कर सकते हैं, ठीक, और सही गलत को समझना, ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, मुझे ठंडे पानी में सर्दी में आदमी डालना और गर्म पानी में ठंडे आदमी डालना, तो ये समझ नहीं चाहिए। और क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन बीइंग इज इंटेलिजेंट? उसको ऑब्जर्व करें कि व्हाट योर अपोजिट पर्सन इज डूइंग, उसकी बेस पे डिसीजन लेना, हर चीज के बारे में अवेयर होना कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैं बैठा हूँ, साइड में बंदा क्या कर रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है, उसकी बेस पे हो सकता है मेरा रिएक्शन हो सकता है, वो कोई चीज फेंकने वाला तो मुझे पीछे होना चाहिए, ठीक है, तो ये इट इज सबकॉन्शियसनेस, हैविंग इमोशंस सबसे जरूरी चीज की ऐसा कौन जज्बात होने चाहिए। So this is why we call ourselves Homo sapiens, and obviously फिर बहुत सारी इसके definitions आती हैं। तो बेसिक चीज वही है कि इंसान एक शऊर रखने वाला शख्स है, वो सोचता है, समझता है, चीजों को एनालाइज करने की सलाहियत रखता है। कि अगर गिलास है तो गिलास why is it half full or is it half empty, ठीक है, गिलास में अगर आधे पानी पड़ा है गिलास के अंदर, तो क्या वो गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये सोच रखने वाला इंसान, पहले मुर्गी है या अंडा है, ठीक है, ये इंसान की फितरत है। जानवर मुर्गी को नहीं परवाह कि पहले मैं आई थी कि अंडा है, पर इंसान को है कि पहले मुर्गी है या अंडा है, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज शऊर मौजूद है, इंसान को सोचता है। इंसान जब जा रहा है तो देखता है कि यार अगला बंदा सिगरेट पी रहा है, तो उसको सोचता है कि यार वो सिगरेट क्यों पी रहा है, अगर बच्चा है तो देखता है कि वो सिगरेट पी रहा है तो मैं भी पी लेता हूँ, क्या पता कोई अच्छी चीज होगी, ठीक है। हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, 2 बिरयानी वाले, एक के पास बहुत रश है, एक बेचारा खाली पड़ा है, तो दिमाग लाशऊरी तौर पे काम करता है कि जिसके पास रश है उसकी अच्छी होगी, ठीक है, बिकॉज वी मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट सिनेरियोस एंड देन वी लर्न, और फिर उसके पास खाई, हमें मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मजा हमारे पास नॉलेज में ऑटोमेटिकली आ जाती है। दिस इज व्हाट वी से वी ह्यूमन बीइंग्स आर, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड हाउ वी थिंक, और यही चीज हजारों सालों से की गई है। यार आखिर ये इंसान सोचता कैसे, उसको कैसे पता कि यार सिगरेट पीना सही चीज नहीं है, या सिगरेट पीनी चाहिए, वो बिरयानी अच्छी है, वो बिरयानी अच्छी नहीं है, आज क्लास लेने का मूड नहीं है, क्यों नहीं है, क्या वजह है कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, आज यार भूख लग रही है, क्यों लग रही है, हाउ कैन आई डिस्क्राइब हंगर, हाउ व्हाई एम आई हंग्री, ठीक है, ये क्योंकि एआई remember हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस वी ट्राई टू मेक कंप्यूटर्स बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स को समझना बड़ा जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग कैसे काम कर रहा है, तभी मैं उसका रेप्लिकेट बना पाऊंगा, ठीक है, मैं कहूंगा यार मुझे एक ऐसा रोबोट बनाना है जो एग्जैक्टली इंसान की तरह काम करे। So in order to do that, the most essential thing is that I first understand how a computer or how a human being works, कि मुझे इंसान का भी समझना है कि पहले वो कैसे बिहेव कर रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा सा फिलॉसफी के हिसाब से अपने इंसान को समझना होगा कि इंसान सोचता है तो क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसको भूख लग रही है तो क्यों लग रही है भूख, किस वजह से लग रही है, और क्या वजह है कि खाना खाने के बाद वो भूख का एहसास खत्म हो जाता है। खाना खाने का और भूख का एहसास में क्या फर्क है, राइट? इफ आई एम touching a glass, if that glass is hot, how can I feel this is hot, how do I know it's hot, और वो अगर गर्म है तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए, चाय है तो क्या गर्म चाय पीऊं या थोड़ा सा वेट करूं ठंडा हो जाए, तो मैं क्यों ठंडा होने का इंतजार कर रहा हूं,
ये इंसान की सोच पर आ जाता है। ये कैसे सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, तो ये बहुत अरसे से, बहुत सालों से, और एक बड़ा क्यूरियोसिटी वाला सवाल है कि इंसान के अंदर ये फितरत कैसी है। इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क क्या है? इंसान सोच, यही फर्क हमें जानवर से अलग करता है। That we are able to identify, we are able to analyze, and we are able to think, and based on our situations we make decisions. और फिर हमारे अंदर सवाल करने की सलाहियत है। जानवर भी इंटेलिजेंट है। Remember, animals are also born intelligent. और फर्क ये है कि इंसान जब जानवर पैदा होगा उसकी जो इंटेलिजेंस की लेवल है वो वही है, और वो उसी लेवल के साथ पैदा होता है, मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। हजारों साल से जो शेर है वो उसी तरीके से जिंदा रहता आ रहा है, उसी तरीके से जा रहा है जिस तरीके से वो पैदा हुआ था। उसको बताया गया था कि तुम्हें एक हर्ड में रहना है, एक फैमिली की तरह रहना है। शेर कभी भी अकेला नहीं रहता। जंगलात में भी, चिड़ियाघर में, रानी बाग में अकेला होगा, बट अगर आप जंगल में जाए तो शेर हमेशा 5-6 पूरे झुंड के साथ चलता है। इसी तरह से कोई जानवर ऐसा होता है जो बिल्कुल अकेले चलता है, उसको झुंड नहीं पसंद। ठीक है, क्यों नहीं पसंद? उसको कैसे पता चला कि मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है या मुझे अकेले रहना है? शेर को कैसे पता चला कि मुझे हिरन को खाना है पर दूसरे शेर को नहीं खाना या घास नहीं खाना? तो उसको इंटेलिजेंस ऑलरेडी मौजूद है, और उस इंटेलिजेंस के साथ वो क्वेश्चन नहीं करना। इंसान में जानवर में फर्क ये कि अगर हम कहें कि यार आपको सब्जी आज नहीं खानी तो क्यों नहीं खानी, या सब्जी खानी है तो क्यों खानी है। ठीक है, आज मेरा मूड बिरयानी खाने का है, क्यों है भाई? आज क्लास लेने का मूड नहीं है, क्यों नहीं है? क्या वजह है कि मूड है? तो ये क्वेश्चन ऑफ आवर थिंकिंग मेक्स अस मोर सुपीरियर टू ऑल अदर बीइंग्स। जितनी भी दुनिया में खुदा की मखलूक है, सिर्फ इंसान को ही ये सलाहियत दी गई कि वो सोच समझ के अपनी मर्जी के तहत फैसला ले। ठीक है, यही चीज हम कंप्यूटर के अंदर कैसे डालें कि रोबोट आए तो उसको अगर गिलास पड़ा है तो वो सोचे यार गिलास को मुझे उठाना चाहिए कि नहीं, गिलास ठंडा है या गर्म है, क्या करूं मैं? अगर अगला रोबोट खड़ा दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है तो क्या रोबोट बोले कि यार वो सिगरेट पी रहा मैं भी पी के देखूं? ये सोचने की सलाहियत रोबोट में कैसे है? यार चलो मैं भी एक कश मार के देख लूं। ठीक है, ये AI basically होता है। AI will allow us to understand that how can we incorporate this kind of knowledge, this kind of thinking behavior of a human being into machines. Okay, how can we incorporate that behavior? Okay, that robot also starts to think rationally. Okay, so AI field goes further. It attempts not just to understand but also to build this intelligent system. तो AI जो field है वो ये करती है, वो ना सिर्फ उस सिस्टम को बिल्ड करने की उसको सॉल्यूशन करती है, बट उसी का एक डिजिटल वर्जन हमारे पास प्रोड्यूस कर रही होती है। AI currently encompasses a huge variety of subfields. Now before we go into the actual AI, we have to understand AI की बहुत सारी subfields हैं। ठीक है, अब सबफील्ड से क्या मकसद? सबफील्ड से मकसद ये कि यस उसकी ब्रांचेस हैं, and it is not possible for us to cover or to work on every single branch. For example, the general learning and perception to a specific such as playing chess. Chess खेलना और chess level को इस वक्त बड़ा जबरदस्त एक AI based chess है, और उसकी लेवल को बहुत अप्रिशिएट किया गया कि चेस की जो लेवल करंट गेम की आ चुकी है वो बहुत हाई लेवल है, वो ह्यूमन बीइंग को इजीली बीट कर सकती है। ठीक है, अगर आप चेस खेलते हो, अभी भी अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, चेस के बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे कंपनी के बने हैं, लेकिन मेजर जो एक कंपनी है उसका नाम निकल जाता है, दैट हैव द मेन चेस गेम। तो अगर आप वो चेस खेलो तो उसके जो एआई है वो इतनी फास्ट है कि इंसान की सोच से ज्यादा एडवांस है। It is able to think 10 times more better than human being according to them, because उसके अंदर उन्होंने AI इतनी फास्ट दी हुई है। अगर उसने हॉर्स को उठाया, हॉर्स क्यों चला, उसने अगर कैसल चलाया तो नेक्स्ट मेरा मूव क्या होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान की सोच के हिसाब से आगे सोच रहा है। ठीक है, इट इज अगेन अ ह्यूज फील्ड ऑफ AI, बट वी कॉल इट अ फील्ड क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज में महदूद है। वो चेस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉजिक उठाऊं और मैं फुटबॉल के अंदर डालूं तो फेल हो जाएगी, क्योंकि फुटबॉल के अंदर टोटली डिफरेंट AI है। वो AI उठा के अगर मैं क्रिकेट के अंदर डालूं तो वो AI वाला सिस्टम क्रिकेट के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिकेट के अंदर टोटली डिफरेंट चालें चल रही है, डिफरेंट सिस्टम चल रहा है। वही AI वाला उठा के मैं अगर रोबोट के अंदर डाल रहा हूं तो नहीं चला पाएगा, अनटिल अनलेस मैं रोबोट को बोलूं कि बैठ के चेस खेलो, वो सिर्फ चेस खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। Hence we say this is one field. If we go into, for example, providing mathematical theorems,
तो अगर मैंने एक ऐसा एआई सिस्टम बना रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली ट्राइज टू सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो उसे उसी फील्ड में महदूद रहेगा। इसी तरह से राइटिंग अ पोएट्री, फॉर एग्जांपल राइटिंग अ पोएट्री इज समथिंग वेरी क्रिएटिव, इन अदर वर्ड्स क्रिएटिव वर्क, artistic work. How can I produce, how can I create a robot that is able to paint from its own vision? From its own vision. जितने भी आर्टिस्ट हैं वो किसी चीज से मुतासिर होकर पेंटिंग बनाते हैं, या अपने ख्यालात एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से कहते हैं, या सीनरी को देख के पेंटिंग करते हैं, ठीक है। रोबोट के अंदर ये फीचर कैसे डाला जाए, और अगर मुझे डालना है तो फिर मुझे वो रोबोट स्पेसिफिकली उसी ही फील्ड का बनाना पड़ेगा। एक रोबोट है, उसको नहीं पता चेस क्या है, उसको नहीं पता कि बारिश क्या है, उसको नहीं पता कि हवा क्या है, उसको सिर्फ ये पता है कि ब्रश है, ये 4 कलर है, मुझे जो दिख रहा है मुझे वो पेंट करना है, ठीक है। पर उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कैसे है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कैसे है, पोएट्री कैसे है, शायरी कैसे करे, वो गुनगुनाए कैसे, ठीक है। सो दीस आर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एआई, दीस आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। अब ये फील्ड्स हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंसान एक वाहिद बंदा भी ये सब चीजें कर सकता है। मैं अगर कोशिश करूं तो एक आधा शेर तो बना ही लूंगा, मैं अगर कोशिश करूं तो छोटी मोटी पेंटिंग तो बना ही लूंगा। इतनी तो स्कूलों में सिखाई दी थी, टीचर ने डंडे मार के तोते और कबूतर बनाए थे, ठीक है। आई कैन डू दैट, आई कैन प्ले चेस अ लिटिल बिट, भले आए ना आए, अगर मुझे रूल्स थोड़े से कोई बता दे एक दफा तो मैं थोड़ा बहुत खेलूंगा, फिर मैं क्रिकेट भी खेल लूंगा, फुटबॉल भी खेल लूंगा, मैं गाने भी गा लूंगा वगैरह। आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स and most brilliant creation. कंप्यूटर के अंदर हम अगर हमें ये सब चीजें डालनी पड़ेगी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि every time there's a different scenario, every time there's a different situation, and we would need to behave. In fact, if there is an earthquake, what should I do now? मेरे शऊर के अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसका पहले हमें पता कैसे चले, फिर उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, फौरन बाहर भागो, कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा रास्ता है, किधर से जाना है, कोई लोग खड़ा है, हमारा दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि इट इज अनबिलीवेबल कि सामने से कोई भागता हुआ आ रहा है तो मेरा फौरन निकल गया, फौरन हम लोग निकल ब्रश। यही सारी खुराफात मुझे कंप्यूटर में अगर डालनी है एक रोबोट के अंदर तो मैं कैसे डालूं? हाउ वुड अ रोबोट नो फर्स्ट इट्स एन अर्थक्वेक, देन व्हाट इज टू बी डन इन द अर्थक्वेक? बिकॉज उस रोबोट को तो सिर्फ मैंने चेस खिलाना सिखाया था, या सिर्फ उसको मैंने बताया था कि भाई पेंटिंग कैसे करनी है, तो अर्थक्वेक आएगा उसको नहीं पता, वो तो पेंट करता रहेगा। इंसान के अंदर ये तमाम के तमाम शऊर मौजूद है। सो दीस आर, दैट इज व्हाई वी से इन एआई वी हैव डिफरेंट फील्ड्स, हर कोई अलग अलग फील्ड है। ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं सब उठा के एक लाशऊरी तौर पे एक परफेक्ट कंप्यूटर बनाऊं। इसी तरह से इसकी वाइड स्टडी क्यों पढ़े हम, फील्ड्स हैं लेकिन हर फील्ड अलग अलग है और इसकी एप्लीकेशन बेतहाशा है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लॉट्स ऑफ फील्ड्स, फ्रॉम रोबोटिक्स टू डायनामिक्स टू इवन योर गूगल याहू सर्च इंजन, वी डोंट इवन नो इट, बट दे टेंड टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेडिक्टिंग, इन नोइंग, finding information that you require based on your previous searches, based on your current search. They make a decision. पहले आप पिछले 2-3 दिन से आप क्या क्यूरीज रख रहे सर्च कर रहे हो और अब अचानक से आपने क्यूरी दूसरी दी है तो उसका क्या वजह है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है। They think like that, ठीक है। Similarly, medicines, diagnostics, even your home appliances. Home appliances nowadays tend to work artificial intelligently as well, जिसको हम कहते हैं smart home concept. Smart homes का सुना हुआ है? Smart home means your computer, your home devices that have smart knowledge, like our smartphones, and they are connected and they have the ability to think. For example, एक फ्रिज का एग्जांपल है कि फ्रिज अगर खाली हो गया तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि यार एग्स की ट्रे जो है एम्प्टी है, तो वो मैसेज कर देगा यार एग्स की ट्रे एम्प्टी हो गई। वो देखेगा नीचे वेजिटेबल बास्केट एम्प्टी है, मैसेज आएगा वेजिटेबल बास्केट एम्प्टी है। किसी हद तक उन्होंने प्रोग्राम किया है ऑटोमेटिकली स्टोर वालों के साथ, एग्स की बास्केट एम्प्टी हुई, ऑटोमेटिक मैसेज एग की बास्केट स्टोर के पास चला जाएगा, फलाने घर के अंदर फलाना स्ट्रीट एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये बंदा है, उसके कुछ अंडे या अंडे खाली हुए। कंप्यूटर खुद ही मैसेज भेज देगा, वहां से स्टोर वाले के पास मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज कंप्यूटर पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ने के बाद खुद ही उसकी सिस्टम ऑटोमेटिकली पैक करके रख देगा, फिर डिलीवरी बॉय आएगा उसको एड्रेस लिख के उठा के वहां पहुंचा देगा। पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है, ऑब्वियसली काम चल रहा है, बहुत हद तक हो चुका है। इसी तरीके से देयर समथिंग कॉल्ड IoT, सब इंटरनेट
Things of internet. Internet of things या things of internet, mostly I think internet of things कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या मकसद, इसके बारे में पढ़ा है? सर जस्ट इंट्रो है कि मतलब आ रही है करंट फ्यूचर में, ठीक है। Current future में Internet of Things is one of the leading and most exciting as well as most complicated thing available to us. Do go and read about it. Internet of Things क्या चीज़ है? और final year में है, you can find very nice projects for your FYP as well and as well as your future direction कि आगे हमें क्या करना है। Internet of Things means basically all your electronic appliances is nowadays connected with computer. Internet of Things, ठीक है। एक Internet of Knowledge है हमारे पास, गूगल हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ नॉलेज है कि नॉलेज का पूरा एक अबंडेंस हमारे पास है, हम एक्सेस कर सकते हैं। थिंग्स से जनरली पूरा एक्चुअल इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है। मेरे घर के सारा इक्विपमेंट इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और वो वहाँ से फीडबैक है। ये वही कॉन्सेप्ट अक्सर मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, यू नो आई रोबोट हो गई, टर्मिनेटर हो गई, हर चीज कंप्यूटर से कनेक्टेड है, बटन दबाओ पूरा घर आपका ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। सो दैट कॉन्सेप्ट हैज ब्रॉट अप टू द लाइट कि इस हद तक कि हमने एक एप्लीकेशंस पे काम किया था कि आप खेतों में अगर पानी दिया जा रहा है तो वो भी पानी कितना दिया जाए, कितना दिया गया है, करंट खेत की कंडीशन क्या, सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो एड्रीनो आजकल सर्किट बोर्ड्स आ गए हैं, उसके साथ प्रोग्रामिंग होती है। एड्रीनो सुना है थोड़ा बहुत, शायद यूज किया किसी ने। वो सर्किट बोर्ड्स आते हैं, बस प्रोसेसर क्रिएट आ रहा है, आपको सिर्फ उसमें प्रोग्रामिंग करके जो आप देना चाहो आप दे सकते हो। तो उन्होंने किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने कोलीग्स थे बेसिकली, इसको थोड़ा हेल्प कर रहे थे फिर हम पीएचडी के अंदर, और उन्होंने सर्किट्स को लिया हुआ था, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जा रही थी इंटरनेट के साथ कनेक्ट थी, तो फिर पीएचडी की और थोड़ी एसक्यूएल की कोडिंग की हमने, उसमें सारा डेटा आ रहा है, वो पूरा डेटा मॉनिटर हो रहा है, वो ऑनलाइन जा रहा है, कंपनी उसको मॉनिटर कर रही है, तो फिजिकली उनको बॉस को आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ग्रीन हाउसेस के अंदर स्पेसिफिकली जो आर्टिफिशियली फार्मलैंड बनाए जाते हैं ग्रीन हाउसेस के, उसमें सारा सिस्टम उन्होंने इस तरह से सर्किटरी लगा दी है, तो घर बैठे बैठे पूरा सिस्टम मॉनिटर हो रहा है। इसी तरह से स्मार्ट होम्स आ गए हैं कि आपके घर के अंदर एक लाइट बल्ब से लेकर एक फैन, स्विच, एयर कंडीशन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर चीज आपस में और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और सब चीजें आप बैठ के देख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। खतरनाक कैसे, आई थिंक टर्मिनेटर मूवी सबने देख ली है, जो उसी हिसाब से देना रहेगा, ओके। एंड देन ऑब्वियसली there are few challenges, like for example, if I create a robot, how does a robot walk, how does it turn, how does it climb stairs, वगैरह वगैरह, ठीक है। This principle basically means that if I have AI, तो हर इंसान की चाल मुख्तलिफ है, वो रोबोट चले कैसे, फिर अगर मुझे वॉक करना है या स्टेयर पे चलना है, टर्न करना है, इस चीज का फैसला कैसे हो। वही मैंने बात की कि ज़लज़ला आ गया, चलो, और उसको पता चला रोबोट को कि भाई देयर इज एन अर्थक्वेक थ्रू सम सेंसर्स, देन ही स्टार्ट्स टू रन, और मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी फाइंड नियरेस्ट एग्जिट, ठीक है, और गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से जाएगा, पहले लेफ्ट करेगा, फिर राइट करेगा, फिर लेफ्ट करेगा, फिर उधर भागेगा, फिर इधर जाऊं, किस तरह जाऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं, फिर सामने से कोई आ रहा है तो क्या करूं, किस तरह चलकर जाऊं, दौड़कर जाऊं, सीढ़ियां आ रही है, सीढ़ियां कैसे उतरूं, ये सारे डिसीजंस हमें मेक करने होते हैं। ये सब उसकी फील्ड के अंदर आता है। ये स्लाइड मैंने रखी है बिकॉज़ सोनी एबीओ इज अ रोबोट। I don't know exactly, मैंने इसका प्राइस लिस्टिंग नहीं चेक की थी, but actually you can buy this robot and then you can program it to do whatever exactly you want to do, ठीक है। इस रोबोट के स्पेसिफिकली न्यूज़ पे वीडियो में बहुत आता है कि रोबोट्स जो जापानीज रोबोट है ऑब्वियसली कि जो फुटबॉल खेल रहे हैं या डॉग्स हैं, पपेट्स के तौर पे यूज किए जा रहे हैं, पेट्स के तौर पे यूज किए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। So you can check, the website is there, www.aibo.com, and you can get some information about this, and then basically this is programmable। कि आप ये रोबोट लेके इसके अंदर सर्किट बोर्ड्स लगी हुई है, आप अपने खुद से कमांड करके, और एआई की एप्लीकेशन में आया था कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटली बिहेव करें। बट देन देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, फ्रॉम नॉट ओनली रोबोटिक्स बट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि आपका कंप्यूटर आपकी जबान को समझने की सलाहियत रख रहा हो। For example, Android हमारे पास मौजूद है। Within Android devices we have something called voice recognition. Okay, Google जिसे कहते हैं, या Google Now, इसमें यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से Apple के अंदर Siri है, SIRI, Apple अगर कोई यूजर है तो। अगर Microsoft Windows 10 यूजर है, उसके अंदर एक नई चीज आ गई है, Cortana, ठीक है। Those are artificially intelligent, natural language based systems that tend to respond to your requests, ठीक है। So this is again one area of it, and then वो एग्जांपल के रोबोट किधर किधर से क्या आ जाए, रेस ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स, आपका एडवेंचर, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके। Let me just skip these things.
गेम प्लेइंग, AI बेस्ड स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, ये बेसिकली इसकी कुछ फील्ड्स आगे थोड़ा सा ऑलरेडी में बात कर चुके हैं कि we have to play games, we have to make an NPC, non-player characters जो गेम के अंदर, how can we make them intelligent, we have speech recognition is again a part of AI because अगर मैं रोबोट बना रहा हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शंस को समझे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ये सलाहियत रखते हैं। मैं इन सेंसेस के ऊपर आके बात करता हूँ कि what do we mean by speech senses in terms of learning, in terms of speech, in terms of hearing, in terms of all these things. कंप्यूटर विजन वही सेंसेस के ऊपर आ जाता है जिसमें हम देखने की सलाहियत कहते हैं, स्पीच बोलने की सलाहियत के हिसाब से आ जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सुनने के हिसाब से कि कोई चीज वो सुन रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करे, तो ये 3-4 बेसिकली वही सेंसेस के ऊपर काम करता है, ठीक है। एंड एक्सपर्ट सिस्टम बीइंग एबल टू थिंक एंड मेक द डिसीजंस एप्रोप्रिएटली। अब असल क्वेश्चन आता है कि है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे हमारा क्या मकसद, करता क्या ये चीज, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, सो इफ यू फील कि आज ओके जस्ट लेट मी स्टॉप इट, बट होपफुली मैं थोड़ी सी यहाँ तक कवर करके इसको फिनिश करूँगा, ओके। सो yeah, I have sometimes it happens in it. What is AI? ठीक है, अब थोड़ा सा कि AI है क्या, what do we mean by artificial intelligence exactly? थोड़ा सा ओवरव्यू में मिल चुका, डेफिनेशन थोड़ी समझ आएगी कि अच्छा यार हमें बेसिकली एक कंप्यूटर को एक इंसान की तरह से करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है लेट मी से व्हाट दिस इज, ठीक है। इंसान क्या है, इंसान कैसे काम करता है, इंसान सोचता है, उस हिसाब से अगर मैं AI को डिफाइन करूं, दिस बेसिकली मींस दैट एग्जिस्टिंग एफर्ट्स टू मेक कंप्यूटर्स थिंक, कंप्यूटर्स को सोचने की सलाहियत दूं, ये AI की एक फील्ड हो जाती है, एक डेफिनेशन आ जाती है कि अगर मैं AI को डिफाइन करूं तो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस दैट मेकिंग कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान सोचता है। इंसान सोचता है, मशीन्स विद माइंड्स फॉर एग्जांपल, वो मशीन्स जिनका अपना दिमाग हो, खुद से सोचे जैसे इंसान सोचता है। अब असल इशू ये आया, इंसान कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, वही मैंने बात की कि ग्लास इज इट हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर एक हॉट कप ऑफ कॉफी है तो शुड आई टच द हॉट कप ऑफ कॉफी और नॉट, उसको छूने से पहले ही मैं वो फैसला कर लेता हूँ यार कप बड़ा गर्म है, थोड़ा हाथ नहीं लगा, ठीक है। तो ये मुझे कैसे पता चला कि हाथ कप गर्म है, लेकिन हो सकता है उसमें से धुआं भी नहीं उठ रहा हो, ठीक है, एग्जैक्टली। तो हमें हीट का सेंस आ रहा है, तो उस सेंस की बेस पे मुझे कैसे पता चला कि यार ये हीट में हाथ जलाएगी, हाउ डिड आई नो कि यार ये गर्म है, तो ठीक है गर्म है तो क्या हुआ, पर गर्म चीज मेरा हाथ जलाएगी ये मुझे कैसे पता चला, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वही चीज आ गई कि बीइंग एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग एबल टू थिंक विद माइंड, सोच समझ के। फिर वो चीज आ गई थिंकिंग रैशनली। रैशनली किस चीज से, रैशनली से क्या मकसद, द स्टडी ऑफ मेंटल फैसिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल और द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशंस दैट मेक इट पॉसिबल टू परसीव, रीजन एंड एक्ट। मीनिंग मतलब क्या हुआ कि वही गर्म गिलास है मेरे पास, पर मैंने इसको हाथ में रखा हुआ है और मैंने हाथ में इसको पकड़ा हुआ है, मुझे पता है कि गर्म है, बट प्रॉब्लम ये है कि ठंड बड़ी है और वो गर्म गिलास बड़ा मुझे थोड़ा सुकून मिला। दैट इज कॉल्ड रैशनल थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग, कि इवन तो गर्म है, इवन तो शायद हाथ भी जला रहा है, लेकिन क्योंकि ठंड इतनी है तो वो गर्म गिलास मुझे पकड़ने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही है, इट्स नाइस फॉर मी। ये सोच कंप्यूटर के अंदर कैसे आए, इवन तो गर्म है, हाथ भी जलाएगी, पर पकड़ने में तासीर ही अलग है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी से रैशनल थिंकिंग इज, कि इंसान सोच रहा है कि बेटा फॉर एग्जांपल टीवी नहीं देखो, क्यों नहीं देखो, आंखें खराब होंगी, अरे ये क्या बात नहीं, आज क्लास लेने का मूड नहीं है, क्यों मूड नहीं है, मूड नहीं है, बाहर बैठता है खतरनाक, अरे ये क्या बात है। हाउ डज द मशीन स्टार्ट्स टू थिंक लाइक दैट, कि मैं रोबोट को बोलूं यार बेटा ये चीज उठा के उधर रखो, रोबोट बोला आई वोंट डू इट, नॉट फील लाइक इट। दैट इज व्हाट रैशनल थिंकिंग इज, दैट इज व्हाट वी से कि मैं बिला वजह किसी वजह के तहत कोई चीज सोचूं, समझ आई बात,
कि मुझे दुख हो रहा है, how do I explain the feeling of sadness or how do I feel the emotion of joy, and based on that emotion I make certain decisions. और वो decisions रोबोट के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कैसे हैं कि आज मैं खुश हूं, चलो सबको ट्रीट है। क्यों खुश हो? तो ट्रीट से इसका क्या ताल्लुक? ये एक इमोशनल है, ये एक सोच है, ये एक थिंकिंग है, ठीक है। फिर ट्रीट कहाँ खानी है? या पिज्जा नहीं, मैकडॉनल्ड्स चलता है। क्यों? दैट थिंकिंग, दैट लॉजिक, वो सोच का जो फर्क है हमारे पास, वो आना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ प्योर टेक्निकल डेवलपमेंट, व्हाट आई शुड डू if there is an earthquake, should I go round the building or should I just try to break the window और यहीं से जंप मारूं? ये मेरी सोच काम करती है। इंसान ये सलाहियत रखता है कि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, उसको कुछ नहीं भी पता तो वो गैस करने की सलाहियत रखता है। रोबोट के अंदर ये चीज कैसे है? How should I make or should I make my robot that intelligent that based on certain situations it tries to resolve a problem? मैं देख रहा हूं कि कोई दूसरा एक बंदा है, वो गिरा पड़ा है, तो नेचुरली मेरी इंटेंशन जाती है कि मैं उसकी हेल्प करूं। ये चीज कहलाती है रैशनल थिंकिंग। हाउ शुड आई इनकॉर्पोरेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट काइंड ऑफ थॉट इन अ रोबोट? देन वी कम्स एक्ट ह्यूमनली। चौथा हिस्सा, एक्ट ह्यूमनली, कि हम इंसान की तरह बिहेव भी करें। उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, टर्न हो रहा है, सीढ़ियों पे जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, बहुत रश है पर मैं साइड में धक्के हो गया, तो कब मुझे साइड से निकलना है, कब मुझे सीधा होना है, कब मुझे थोड़ा रुकना है कि बंदा पास हो जाए, कब मुझे उसको धक्का देके आगे निकलना है। वो मेरा जो एक्शंस है, अभी इसका सोच से कोई ताल्लुक नहीं, परफॉर्म करना है। एट रन टाइम मेक अ डिसीजन, डू इट। तो वो डिसीजन कैसे डू इट होना चाहिए, ठीक है। थिंकिंग में हमने सोच लिया कि यार ये करना है, अब वो कैसे करो? What should be the actions? How should we do it? What should be the steps? What should be the logic? What should be the basic requirement of making that decision? क्या अब ये काम करना है? That comes under art of acting or human acting के अंदर. Then acting rationally. Acting rationally means मुझे दुख है तो मैं रो रहा हूँ. मतलब मैं अपने जज्बात और एहसासात की बुनियाद पे रो रहा हूँ. ये सलाहियत रोबोट में कैसे आई है? कि मैंने उसको थप्पड़ मारा और रोने लग गया. वो तो डिपेंड करता है रोबोट कैसे बना है, ठीक है। बट यस, हाउ डू वी मेक अ रोबोट एक्ट रैशनली एज वेल, कि अपनी सोच के हिसाब से वो फैसला करे। वही चीज कि अगर गर्म गिलास है तो क्योंकि सर्दी ज्यादा है तो वो गर्म कप और कॉफी भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये रैशनल एक्टिंग है कि मैं होल्डिंग इट इन माय हैंड। फिर आई एम होल्डिंग इट माय हैंड, या फॉर एग्जांपल मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बहुत कमर में दर्द है, तो डॉक्टर कह रहा है कि भाई गर्म पानी का टिकोर करो, थोड़ा सा गर्म पानी लगाओ, ठीक है। वो गर्म पानी गरमाइश दो, तो गर्म पानी के थैली में डाल के हम टिकोर करते हैं वगैरह, वो चीज कब करोगे? तो these are basically 4 major steps, 4 major points of human behavior that we need to incorporate inside a computer. कि पहला, वो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह लॉजिकली रैशनली सोचे, ठीक है। कि मैं अच्छा, there is a difference between the logical, there is a difference between the rational. Logical मतलब A plus B is equal to C, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल लॉजिक हो गया, या यू कह लो कि फॉर एग्जाम्पल A is equal to B and B is equal to C, hence A is also equal to C. This is a logical conclusion, ठीक। That's a logical definition. Rationally क्या चीज definition हुई कि मुझे आज भूख लगी है या मुझे आज खाना नहीं खाना, even though I feel hungry but I don't feel like eating it. ये रैशनल थिंक होगी कि मैं लॉजिकली कुछ नहीं कर रहा, लॉजिकली मुझे भूख लगी है, आई शुड ईट, बट आज खाने का मूड नहीं, दिल उदास है। दैट इज रैशनल थिंकिंग कि गिलास गर्म है पर फिर भी मैंने पकड़ा हुआ है क्योंकि वो एहसास जो मुझे आ रहा है गर्म का, इन अ कोल्ड वेदर इज वेरी नाइस। फिर अगर वही गर्म कॉफी का मैं तब की धूप में खड़े होकर पकड़ू तो फिर नहीं, तो ये बेवकूफी भी, दैट्स इरैशनल थिंकिंग से कहते हैं कि क्या बेवकूफों की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम वही कहते हैं कि यार थोड़ा सा अकल से काम लो। अकल से काम लेने का मकसद ये, थिंक रैशनली, लॉजिकली सोचो जरा, तो वो चीज आती है हमारे।
फिर उसको कैसे किया जाए और उसको रैशनली कैसे किया जाए. So generally these four categories we say that are available to us in terms of human behavior. मैंने वही कहा कि किसी भी रोबोट को कन्वर्ट करने के लिए it's necessary to understand how a human works. And obviously मैं रोबोट वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मशीन ज्यादातर जनरल. किसी भी मशीन को, not only your robot, but even your keyboard, even your mobile phone, even your computer, AI does not only limit itself to robot. ठीक है? But robot or some games, these are one of the key applications of AI. But we will discuss later on that how you can what are other applications and how you can incorporate AI in various other applications as well. Not to a huge extent, but even to a smaller extent. ताकि आप FYP के हिसाब से भी अगर आप सोचो हम उसको एक small project AI बेस कैसे बना सकते हैं. ठीक है? So what AI means? AI means a system that thinks like humans, system that thinks rationally, a system that acts like human, and a system that acts rationally. ठीक है? एक ऐसा सिस्टम जो इंसान की तरह सोचे, उसकी तरह समझे, उसकी तरह बिहेव करे और उसी की तरह नखरे भी दिखाए. ठीक है? सो एक्टिंग रैशनली मीन्स नखरे दिखाना, इतराना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट? ठीक है? गुस्सा होना, सैड होना, यू डूइंग समथिंग दैट्स नॉट दैट. सो दिस इज व्हाट एआई बेसिकली इज. ठीक है? आई गेस ये लाइट बंद होना इंडिकेशन है